Hello everyone, welcome to my YouTube channel Rajni Mathematics Academy. So today we will start with lecture number 3 on sets. Set is a very first topic in class 11 of mathematics. Okay, sets, and this will be part 3 of sets because we have covered part 1 and part 2 on sets. First part is on introduction of sets and second part is representation of sets in tabular form, that is roster form, and second is set builder form. So today is third lecture on sets of class 11th. Okay, and today we will cover empty set. First topic will be empty set. Second topic will be finite and infinite sets. And third topic will be equal sets. So today we will cover these three topics: empty set, finite and infinite sets, and third will be equal sets. So first we see equal set, empty set. Empty set, as its name tells that set is empty. Okay, इतना तो थोड़ा सा सबको आइडिया हो ही जाता है कि empty set का मतलब है empty है, empty मतलब कि set खाली है, इतना थोड़ा बहुत आइडिया हो गया नाम से। तो अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। empty set is a set which contains no elements. Okay, see, empty set is a set which contains no element. Which contains no element, which contains no object, which contains no member. As I told you in very first lecture that objects, elements, members are synonyms to each other. So empty set is a set which contains no elements. Empty set is a set which contains no objects. Empty set is a set which contains no members. Okay, I hope till now it is clear to everyone. If there is any doubt to anybody till here, you can ask me any number of times. So now we move further. Now how to denote empty set, or how to represent, how to write empty set. Empty set is written like this. In both ways you can write empty set. अगर empty set है तो आप उसको इन दोनों ब्रैकेट से डिनोट करेंगे या फिर आप 5 से भी डिनोट कर सकते हैं. यूजुअली वी डिनोट empty set by 5. Okay, so now empty set is also known as void set or null set. अगर हम कहीं पे भी आप null set देखते हैं या फिर void set देखते हैं, it means they are talking about empty set. एग्जाम में null set भी आ सकता है, void set भी आ सकता है, empty set भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है. it means empty set ही है. it means they are asking about empty set only. Definition can be like this also. A set which contains no element is a null set. A set which contains no object is a null set. A set which contains no member is a null set. Similarly, we can define for void set. A set which contains no element is a void set. A set which contains no object is a void set. And a set which contains no member is a void set. So, empty set, null set and void set are similar. It means these are the same thing. Okay, now we see examples of empty set. Okay,
एम्प्टी सेट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने कोई भी सेट लिया ए, इसमें हम देखते हैं ए सेट में देखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट हु स्टडीज इन क्लास 11। इसमें क्लास 11 के सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो क्लास 11 पे पढ़ते हैं, वेदर दे आर गर्ल और बॉय। ओके, बट नाउ वी सी सेट बी। सेट बी में हम क्या लेंगे, वो स्टूडेंट्स लेंगे जो क्लास 10th में भी हैं और क्लास 11th में भी हैं। ठीक है, देखते हैं x such that x is a student of who studies in class 10th and class 11th. As you all know, this is not possible because a student cannot be in class 10th and class 11th at the same time. So B set will be empty set. Okay, दोबारा से देखते हैं ऊपर। इसमें पूछा गया है कि यहाँ पे एम्प्टी स्टूडेंट्स जो क्लास 10th और क्लास 11th में भी पढ़ते हैं, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो एक ही टाइम पर दोनों क्लासेस में पढ़ता हो। सो बी सेट विल बी एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 से डिनोट कर सकते हैं या ब्रेसेस से भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल। सी सेकंड एग्जांपल देखते हैं, सेट बी x such that x lies between 1 and 2 and x belongs to natural numbers। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि हमें x लेना है कोई भी जो 1 और 2 के बीच में आता हो और x जो है नेचुरल नंबर हो। जैसे कि आपको पता ही है कि 1 और 2 दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, बट 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। सो दिस विल बी एम्प्टी सेट। ओके, या तो आप इसको ऐसे लिखेंगे या आप इसको ऐसे लिखेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही है 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता है, तो इसलिए ये एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। अगर इसमें यहाँ पे नेचुरल नंबर ही होता लेकिन यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी होता, तो इसमें क्या आता 1, बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पर है, इट मीन्स इट इज इंक्लूडिंग 1 हियर, सो सेट में 1 होता। ठीक है, अगर सेट में यहाँ पर इक्वल टू का साइन होता और कहीं नहीं होता तो इट मीन्स सेट ये हो जाता। ठीक है, और अगर दोनों ही जगह इक्वल टू का साइन आ जाता तो सेट 1 2 हो जाता। बट सेट में क्या गिवन है, ये कहीं भी इक्वल टू का साइन नहीं है, सो सेट विल बी खाली, सेट खाली होगा, एम्प्टी होगा। आई होप डिफरेंस क्लियर समझ में आया होगा आप लोगों को। आपको ये भी देखना है कि यहाँ पे किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, और यहाँ भी देखना है यहाँ पे क्या मांगा है। अगर ये रियल हो जाता तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर्स हो जाते। ठीक है, तो यू हैव टू सी इट वेरी क्लियरली, वेरी केयरफुली दैट हाउ द सेट इज डिफाइंड। ओके, I hope concept of empty set is clear. Okay, now we move to finite and infinite set. Finite and infinite set. Finite और infinite set के जो नाम हैं, इससे ही आपको पता चल रहा है कि जो सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट है, डेफिनिट नंबर है फाइनाइट सेट के अंदर, और इनफाइनाइट सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइट है। तो आप लोगों को ये नाम से ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट इज अ सेट
which contains definite number of elements. This is the definition of finite set. Now see example. हमने सेट लिया A, Y such that Y is a day of a week. जैसे कि आप सबको पता ही है वीक में 7 डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 डेज होते हैं. तो इसके अंदर वो 7 डेज आ जाएंगे. तो आपको पता है कि डेफिनेट नंबर्स हैं एलिमेंट्स के, सो इट विल बी अ फाइनाइट सेट. या आप देख सकते हैं बी सेट ले लेते हैं, Z such that Z is a vowel. इसके अंदर A, E, I, O, U, ये फाइनाइट सेट हो जाता. या फिर C सेट ले लेते हैं, X such that X is a consonant. ओके, ये हमारे पास कॉन्सोनेंट में 21 लेटर्स आ जाते, अल्फाबेट्स आ जाते, जो एक्सेप्ट वोवल्स हैं तो वो 21 कॉन्सोनेंट्स इसके अंदर आ जाते. So it is a finite set. Another example also you can see. Let's see set C. Y such that Y is a natural number before 10, less than 10 or before 10. Okay, so 1 से लेके 9 तक के इसमें नंबर्स आ जाएंगे. So it will be a finite set. Okay, now we move to infinite set. इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं. Infinite set is a set which contains indefinite number of elements. Set C दे A देखते हैं, X such that X is a point on number line. As you all are in class 11th and you all know there are infinite numbers of numbers on number line. इनडेफिनिट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी आ सकता है यहाँ पे. ठीक है, X इज अ पॉइंट ऑन नंबर लाइन. जैसे कि आपको पता ही है यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के नंबर्स आ जाएंगे विच आर इनफाइनाइट इन नंबर्स. So this will be a infinite set. Now see B set देखते हैं, X such that X belongs to natural number. आप लोगों को पता ही है नेचुरल नंबर्स क्या हैं, 1, 2, 3. ठीक है, आपको ये समझ में आया. B सेट X such that X belongs to कैपिटल N, that is natural numbers. तो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. These 3 डॉट्स को आप देखिए ध्यान से, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. अब हम लेते हैं सेट C. Y लेते हैं, इसमें Y such that Y belongs to W. इसमें क्या होगा, 0, 1, 2 एंड सो ऑन. ठीक है, हम इसमें सेट ले लेते हैं D, X, Z such that Z belongs to पॉजिटिव नंबर्स. हम इसमें कुछ और लेटर लेते हैं, इसमें A लेते हैं, A belongs to Z, that is इंटीजर्स. इसमें क्या आ जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी, -1, 0, 2 इन्फिनिटी. ओके, और E सेट हमने लिया X such that X belongs to R. इसमें रैशनल नंबर्स भी आ गए, इरेशनल नंबर्स भी आ गए, नेचुरल नंबर्स भी आ गए, होल नंबर्स भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स, सब नंबर्स आ गए. तो इसमें भी ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के आ जाते हैं. तो जो ये 3 डॉट्स हैं या इस तरीके से लिखे गए हैं, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनफाइनाइट सेट्स है. तो इनफाइनाइट सेट को हम कैसे लिखते हैं, 2-3 एलिमेंट्स लिखने के बाद हम 3 डॉट्स लगा देते हैं. इट मीन्स दे आर
infinite sets. I hope difference between finite and infinite set is clear to everyone. If there is any doubt to anybody till here, you can ask me any number of times, as it is my duty to explain each and every line, each and every question to you again and again. Okay, you can ask me any number of times and I will explain you uh, that number times. Okay, so now we move to equal sets. Okay, equal set देखने से पहले हम एक चीज और देख लेते हैं. अभी हमने एम्प्टी सेट देखा और फाइनाइट सेट्स देखे. ओके, एम्प्टी सेट ये है और फाइनाइट सेट की डेफिनेशन मैंने बता दी है आपको. तो अब ये बताना है कि जो एम्प्टी सेट है वो फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है. इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, सो इट विल बी अ फाइनाइट. So you must understand it, you must remember it, that empty set is a finite set. Okay, you must remember it. Okay, now we move to equal sets. equal sets में देखेंगे, जब इक्वल सेट की बात हो रही है, इट मीन्स देयर आर मोर देन वन सेट. यहाँ पे टू, एटलीस्ट टू सेट्स हैं. तो इक्वल सेट्स आर द सेट विच कंटेन एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स. इक्वल सेट्स आर द सेट्स which contains exactly same elements. Okay, see, let's say A 1 2 3 4, B set is 3 1 4 2. हमें ऑर्डर नहीं देखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं देखने, बट दे मस्ट हैव सेम एलिमेंट्स. देयर मे बी रिपीटेशन ऑफ सेट्स आल्सो, बट सेट इज 3 1 4 2. मतलब सेम नंबर ऑफ सेम एलिमेंट्स है ना. नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं होंगे, जरूरी नहीं है, बट एग्जैक्टली सेम होने चाहिए. ठीक है, जब ही आएगा. जैसे कि अभी हम आगे भी देखेंगे, अ सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. उसको थोड़ा आगे एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तो टू सेट्स इक्वल होंगे अगर सेम उसमें होंगे. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा आगे, A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A. ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा. नाउ वी सी एग्जांपल्स. लेट्स से A सेट लिया हमने X such that X is a vowel. ओके, एंड B सेट ले लिया हमने A E I O U. ये दो सेट है, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, बट नंबर ऑफ नेम जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे इनके अंदर. सो दीज टू सेट्स विल बी इक्वल. ओके, नाउ वी सी अनदर. हमने सेट ये ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड B सेट ले लिया Y such that Y is a natural number before नहीं इक्वल टू 9. ओके, इस तरीके से ले लिया तो दोनों सेट विल बी इक्वल. ओके, इससे आगे का हम देखेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में. टुडे वी हैव डन एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स एंड इक्वल सेट. आई होप ये तीनों टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसेट्स वगैरह देखेंगे. ठीक है, सो आई एंड इट हियर ओनली आज का लेक्चर. एंड रजनी मैथमेटिक्स एकेडमी के जो भी मेंबर्स हैं अब तक, उनका दिल से शुक्रिया कि आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, मेरे चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं. यू आर शेयरिंग माई चैनल, यू आर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. एंड
Again, this is my request to all of you that please subscribe my channel, share my channel, and keep loving my channel. Okay, as you all know, sharing is caring, so please keep sharing my channel. Okay, keep sharing my videos, like my videos, subscribe my channel. Okay, and one more thing, please press the bell icon also, so that you get the notification of my new uploaded video immediately, and you can watch at that time only. You can share my channel on your WhatsApp status, you can share on Instagram story, you can share on Twitter, you can share on Instagram, Facebook, you can share it anywhere. Okay, thank you so much.